हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंडरस्टैंड विद रिया। और आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स। आज हम 3 टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स देखेंगे, उनका फुल एग्जांपल्स देखेंगे और वो क्या होता है, कैसे होता है वो देखेंगे। ओके, सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो फर्स्ट हार्मोन इज ऑक्सिन। आज पहला हम लोग हार्मोन जो देख रहे हैं वो ऑक्सिन है। ओके, सेकेंड हम लोग देखेंगे जिब्रेलिन और थर्ड हम देखेंगे साइटोकिनिन। ओके, सो फर्स्ट इज ऑक्सिन। First point is first of the major plant hormone to be discovered. So auxin is the first to be major, means it's a major plant hormone. The important point here is major plant hormone to be discovered. So this is the first and major plant hormone. So if question asks that which is the first plant hormone to be discovered, so your answer should be auxin. Okay, remember students, don't make spelling errors because most students make this error, so keep in mind this spelling. Second is indole 3-acetic acid is the most common natural occurring plant hormone of the auxin class. This is the most important question and ये क्वेश्चन कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है. सो इंडोल 3-acetic acid, दिस इज द नेम ऑफ द ऑक्सिन क्लास प्लांट हार्मोन है ये ऑक्सिन क्लास का. और ये मोस्ट नेचुरली अकरिंग है, मतलब कि सबसे ज़्यादा नेचुरली अकरिंग जो प्लांट हार्मोन है ऑक्सिन क्लास में वो है इंडोल 3-acetic acid. Now, if the question asks that the most common plant hormone of auxin class, या फिर if question asks the naturally occurring plant hormone of auxin class, then it should be indole 3-acetic acid. Or if IAA full form is asked, then indole 3-acetic acid. So keep in mind the word indole 3-acetic acid. It's an example of auxin plant hormone also. And IAA, remember the full form and short form both. Okay. Next is, these are some of the functions of auxin. First is auxin also influences root formation. So first is कि auxin क्या करता है, root formation जो होती है, जो root formation होती है उसको क्या करता है, वो influence करता है, बढ़ावा देता है, promote करता है. Okay. Second is responsible for apical dominance. What is this? Responsible for apical dominance and phototropism. So this second example function that auxin is responsible for apical dominance is key. Now what is apical dominance? Apical dominance means when a lateral buds present in axial of leaves does not grow. Now see, मतलब कि जो लेटरल बर्ड्स होती हैं, जो प्लांट में लेटरल बर्ड होती हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, लीव के एक्सिल में, वो बढ़ती नहीं है, उसको बोलते हैं एपिकल डोमेन. सी द डायग्राम, दिस इज द प्लांट. ओके, सो हियर दिस इज द प्लांट. तो वेट, हाँ, दिस इज द प्लांट. तो यहाँ पे जो है बर्ड्स रहती हैं. ओके, यहाँ पे सो यहाँ पे जो बर्ड्स रहती हैं, सो दिस इज कॉल्ड लेटरल बर्ड्स. इसको क्या कहते हैं, लेटरल बर्ड्स, इनको बोलते हैं लेटरल बर्ड्स. सो जब लेटरल बर्ड्स कहाँ पे प्रेजेंट है, एक्सिल पार्ट मतलब ये इस पार्ट में. सो जब लेटरल बर्ड्स एक्सिल ऑफ लीव्स में प्रेजेंट होती हैं और जब वो एक और ब्रांच में, सी लाइक दिस, एक और ब्रांच में डेवलप नहीं हो पाती हैं, तो उनको बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस. सो द डेफिनेशन ऑफ एपिकल डोमिनेंस शुड बी राइट डाउन, when lateral buds present in axial of leaves does not grow into a branch, it is called apical dominance. Okay, now the third point is promote xylem differentiation. Xylem differentiation means water कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो xylem differentiation उसको भी promote करता है. Then second last is retards leaf abscission. Retard leaf abscission means falling of leaves, means inhibit falling of leaves.
तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया उसका कि वो जो लीफ की फॉलिंग है उसको इनहिबिट करता है. एंड द लास्ट वन इज इनहिबिट मतलब स्टॉप करता है. एंड लास्ट वन इज प्रमोट्स फ्रूट ग्रोथ. ओके, so these are all. First is auxin influence root formation, second is apical dominance इसमें होता है. And remember students, this is the most important term for this auxin functions, that it is responsible for apical dominance. Then promotes xylem differentiation, and this is the negative effect we can say. Retard leaf abscission. Now if you will think that retard leaf abscission means it inhibit means stop falling of leaves. तो कभी कभी क्या होता है, फॉलिंग ऑफ लीव्स को स्टॉप करता है. तो कभी कभी जो डेड लीव्स हो जाती हैं, जो एकदम सूख जाती हैं, तो उन पे वो जो प्लांट है, तो जैसे ट्री पे वो जो लीफ है वो वहीं पे रहती है. तो जब तक वो फॉल नहीं करेंगी तब तक एक न्यू ग्रीन लीव्स कैसे वहाँ पे ग्रो होगी. तो इसका ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि जो डेड लीव रहती हैं, जो वैसी लीव्स रहती हैं, उनको वो गिरने नहीं देता है, और जिसकी वजह से ग्रीन फ्रेश लीव्स वहाँ पे ग्रो नहीं हो पाती हैं. सो दिस इज द फंक्शन की रिटार्ड्स लीफ एब्सिशन. वी कैन कॉल इट अ नेगेटिव पॉइंट हियर. एंड द लास्ट वन इज प्रमोट्स फ्रूट ग्रोथ, मतलब फ्रूट की ग्रोथ में भी ये हेल्प करता है. सो दिस इज द फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन. नाउ regulate, this is also a function only, regulating cell elongation. then auxin क्या करता है, cell elongation मतलब सेल को elong करने में हेल्प करता है. then same here affect apical dominance, the inhibition of lateral buds are meristem. जैसे मैंने कहा कि लेटरल बर्ड्स को बढ़ने में नहीं मदद करता है, ब्रांच में वो डेवलप नहीं हो पाती हैं, उसको ही बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस, तो उसको अफेक्ट करता है. एंड दीज हॉर्मोन्स इंक्रीज प्लांट ग्रोथ बाय स्टिमुलेटिंग सेल्स टू लेंथ एंड कॉज टू डिफरेंट शेप्स. क्या करता है ये हार्मोन, ये इंक्रीज प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करता है. कैसे, जो सेल्स है उनकी लेंथ को बढ़ा के और उनको डिफरेंट शेप्स देके. सो क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ को हेल्प करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सिन. आवर नेक्स्ट प्लांट हार्मोन इज जिब्रेलिन. ओके, आवर नेक्स्ट plant hormone is gibberellin. First is produced in young developing shoots and seeds. First point is कि ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, या फिर वी कैन से कहाँ पे फाउंड होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है दिस जिब्रेलिन हार्मोन. सो इट इज प्रेजेंट इन यंग डेवलपिंग शूट्स एंड सीड्स. सो जो शूट्स होता है और सीड्स होता है वहाँ पे वो प्रेजेंट रहता है, यंग डेवलपिंग, ओके, जो डेवलप हो रही होती हैं. सेकेंड पॉइंट इज जिब्रेलिन हैव सम कॉमन एक्शन इन द डेवलपमेंट ऑफ. अब ये कहाँ कहाँ डेवलपमेंट होता है, इसमें कहाँ कहाँ इसके एक्शंस होते हैं. सेल डिवीजन में हेल्प करता है ये, कि सेल जो डिवाइड होते हैं सेल डिवीजन में हेल्प करता है. सेल के एलोंगेशन में हेल्प करता है. स्टिमुलेट सीड जर्मिनेशन, स्टिमुलेट फ्लावरिंग एंड स्टिमुलेट फ्रूट डेवलपमेंट. मीन्स सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, फ्लावरिंग में हेल्प करते हैं, एंड फ्रूट के डेवलपमेंट में हेल्प करता है. ओके, so this is all the function of gibberellin. Stimulate seed germination, stimulate flowering and stimulate fruit development. ये सब क्या करता है, stimulate means, हाँ remember stimulate means क्या होता है, stimulate means active, और we can say it activate. so ये seed germination को activate या active करता है, flowering को और fruit development में ये सब help करता है. so this is the function of gibberellin. and now gibberellin are a group of plant hormone that like auxin promote plant growth. now gibberellin क्या है, एक plant hormone है, और auxin के तरह ही ये भी plant growth में help करता है. second point is are effective in stimulating elongation of internodes. internodes क्या होता है, now who knows what is internodes, write in the comment box. internodes means, see, this is, here it is nodes, just I am telling, here is nodes. so distance between the two nodes are called internodes. okay, so stimulate elongation of internodes. तो internodes की elongation में मदद करता है. in altering flowering times को alter करता है. in stimulating fruit development,
फ्रूट डेवलपमेंट को एक्टिवेट करता है, एंड ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स, हियर इट शुड बी लेटरल बर्ड्स, ओके, हियर इट शुड बी लेटरल बर्ड्स. सो लेटरल बर्ड्स और फ्रूट डेवलपमेंट में स्टिमुलेट करता है और इंक्रीज सेल इन्वेशन, ओके, सेल इन्वेशन को इंक्रीज करता है, मतलब कि इसके डेवलपमेंट को इंक्रीज करता है, एज आई कॉल्ड सेल डिवीजन को इंक्रीज करता है. एंड देन लास्ट वन इज देयर ड्रामेटिक एक्शन इज मेकिंग जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट टू ग्रो टू नॉर्मल साइज. तो उनके जो ड्रामेटिक एक्शन होते हैं जिब्रेलिन के, वो क्या करता है, जो जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट होते हैं, जेनेटिकली मतलब कि पहले से ही जेनेटिक की वजह से ही ड्वार्फ होते हैं, मतलब ड्वार्फ मीन्स छोटे होते हैं, साइज में कम होते हैं. तो जो छोटे प्लांट होता है उनको अपनी नॉर्मल हाइट में ग्रो करने के लिए हेल्प करता है. कौन करता है? जिब्रेलिन. सो इफ क्वेश्चन आस्क्ड दैट व्हिच हार्मोन हेल्प्स ड्वार्फ प्लांट टू ग्रो टू नॉर्मल साइज, योर आंसर शुड बी जिब्रेलिन. ओके, नाउ the last one is cytokinins. I'll talk today about only 3 plant hormones. So our last one is cytokinins. First is produced in primarily root tips. So कहाँ पे present होता है ये? root tips में. Found कहाँ होता है? root tips में. Then cytokinins have some common action in the process of, first is cell division, जैसे cytokinins भी कह सकते हैं, तो cell division में हेल्प करता है. सेल डिवीजन को साइटोकाइनेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन ओनली, सो हियर इसलिए साइटोकाइनेसिस लिखा है मैंने. सो इधर सेल डिवीजन, ओके, सेल डिवीजन में हेल्प करता है. देन टिश्यू कल्चर में हेल्प करता है. एंड लास्ट वन इज डीले लीफ सिनेसिस, मतलब कि जो लीफ सिनेसिस होता है उसको डीले करता है. ओके, एंड व्हाट इज डीले लीफ सिनेसिस? So delay leaf senescence. Leaf senescence means here, leaf senescence means कि leaf senescence is the stage where the cell permanently stop growing or dividing. Means जो cell होते हैं वो जो divide करना बंद कर देते हैं. Means it has reached its age. सो वी कैन कॉल दैट एजिंग ऑफ लीव्स जो होती है, मतलब कि लीव्स जो होती है वो सेल्स जो होते हैं वो एज पे पहुंच जाते हैं. मीन्स जो वो परमानेंटली सेल डिवीजन में स्टॉप हो जाता है, लेकिन वो डाई नहीं होते हैं, लेकिन जो सेल डिवीजन है उनमें वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट रिसाइकल होते हैं उनके अंदर और मिनरल्स जो होते हैं वो जो सर्कुलेट होना बंद हो जाते हैं. सो लीफ सेनेसिस मीन्स इट्स अ प्रोसेस वेयर द सेल परमानेंटली स्टॉप टू डिवाइड but does not die. Okay, so delay leaf senescence मतलब कि उसकी जो परमानेंट सेल डिवीजन जो होता है उसको मतलब सेल डिवीजन जो स्टॉप होता है तो उसको थोड़ा रोक देता है, थोड़ा उसको लॉन्ग टाइम दे देता है ताकि सेल डिवाइड हो सके. लाइक टेक एन एग्जाम्पल दैट कि इफ प्लांट सेल स्टॉप डिवाइडिंग एट द एज, टेक अ टाइम लाइक 10 years. ओके, सो अगर 10 years है तो जो साइटोकिनिन्स हैं वो उनको क्या कर देते हैं, थोड़ा टाइम बढ़ा के 12-15 years कर देते हैं. तो क्या होता है, तो इतने टाइम के लिए क्या होता है उनमें सेल डिवीजन चालू रहता है. सो क्या करता है, लीफ सेनेसिस को बढ़ा देता है. अंडरस्टूड? लीफ सेनेसिस मीन्स प्रोसेस वेयर सेल परमानेंटली स्टॉप टू डिवाइड बट डज नॉट डाई. तो जब वो सेल डिवाइड नहीं होगा तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स और जो मिनरल्स होते हैं वो सर्कुलेट नहीं होंगे, वो ग्रो नहीं होगा. तो इसकी वजह तो जो साइटोकिनिन है वो हार्मोन जो अगर प्रेजेंट होता है तो जो लीफ सेनेसिस है वो बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए, मतलब थोड़ा वक्त के लिए और उसको टाइम मिल जाता है ग्रो करने के लिए. ओके, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट एंड पॉजिटिव फैक्टर. ओके, नाउ राइट इन द कमेंट बॉक्स कि मैंने कौन सा नेगेटिव फैक्टर बोला था. ऑक्सिन में मैंने कोई सा एक नेगेटिव फैक्टर बोला था और ये है साइटोकिनिन्स का पॉजिटिव फैक्टर. सो राइट इन द कमेंट बॉक्स कि मैंने कौन सा नेगेटिव फैक्टर बोला था. ओके, एंड क्लास ग्रोथ हार्मोन्स इंपॉर्टेंट इन रेगुलेशन ऑफ न्यूक्लियाई एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. नाउ दिस साइटोकिनिन्स जो क्लास ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो रेगुलेशन ऑफ न्यूक्लियाई एड इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, मतलब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और जो भी न्यूक्लियाई के प्रॉब्लम रहते हैं, एड रहता है, उनमें हेल्प करता है. देन एंटागोनिस्ट टू ऑक्सिन, साइटोकिनिन जो है वो एंटागोनिस्ट है ऑक्सिन से. व्हाट डज एंटागोनिस्ट मीन? एंटागोनिस्ट इज सिंपली जस्ट
मतलब उसका है ऑपोजिट। सो जो साइटोकिनिन हार्मोन है वो ऑक्सिन से अपोजिट है, मतलब जो ऑक्सिन के फंक्शन है वो साइटोकिनिन से एकदम अपोजिट है। तो ऑक्सिन अगर प्रमोट करता है तो ये इनहिबिट करता है। सो दिस इज द अपोजिट। नाउ cytokinins are plant hormone that are involved in cell division, shoot multiplication. This is the various function I involved in one. Cytokinins are plant hormones that are involved in cell division में help करता है, cell division, shoot multiplication and axillary bud proliferation means bud developing in the leaf axils. तो ये क्या करता है कि an axillary bud प्रोलिफरेशन मतलब कि बर्ड्स डेवलपिंग इन द लीफ एक्सिल, तो लीफ एक्सिल में वो डेवलप करने में हेल्प करता है। दे हेल्प डीले सेनेसिस। नाउ डीले सेनेसिस जैसे मैंने कहा था कि लीफ सेनेसिस को डीले करता है, मीन्स एजिंग को डीले करता है। एजिंग मतलब एज, तो उसकी एज को थोड़ा डीले करता है। एंड इफ प्लांट्स आर टू स्पिंडली इंक्रीज साइटोकिनिन्स विल हेल्प फोस्टर शॉर्टर थिकर स्टेम्स। तो ये हेल्प करता है शॉर्टर और थिकर स्टेम्स में। इफ अगर लीव्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पिंडली हैं तो साइटोकिनिन्स क्या करता है, फोस्टर शॉर्टर और थिकर स्टेम में हेल्प करता है। थिक स्टेम मतलब उसमें हेल्प करता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 हॉर्मोन्स। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द 3 हॉर्मोन्स, ऑक्सिन, जिबरेलिन एंड साइटोकिनिन। So I am ending my video here only. If you like my video, don't forget to like, share and subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.